So last time we have started with this instruction set and we have done already 6 instructions. So I'm just taking a small revision that we have done this first instruction which is very familiar to you, that is move rt comma rs. So this instruction is basically used to transfer data from source register. This is your source register rs and rt is your destination register. So you are transferring data from source to destination. So this is your data transfer group. First group, I'm explaining all the instruction based on function. So first we are doing data transfer function. So in this we have total 13 instruction and all are responsible for transfer of data from source to destination without changing the content of source, right? So in this, content of source will not change. So depending on where is my data can be in register, data I'm taking from memory directly or indirectly, or immediate after your instruction if data is there, or you are taking data from input. Then based on we have different instruction, or that is so same way destination also, destination register है, memory है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी हमारा इंस्ट्रक्शन चेंज होता है. So first is this move rd comma rs. So this way you have to write about the function. So in this it is written as comment. So instead of comment you write about function, that this is the function of this instruction. So it will copy the destination register with the content of source register. So like in this move a comma b, तो b के content है 55, a के content है 05. After execution of this instruction, content of b will transfer into accumulator without changing the content of register b. So when you execute this instruction in your program, content of accumulator will change. So that is our first instruction. Next instruction, for this you should know about their addressing mode and group. Okay, so addressing mode, since you are using register, so addressing mode of this instruction is register addressing mode. And since we are doing data transfer group, so this belongs to data transfer. And number of bytes, since all our registers are there in this instruction, so it will take one memory location or 1 byte to store. So this you all have to write in 1 mark. ठीक है, 74 इंस्ट्रक्शन में से कोई 3 या 4 इंस्ट्रक्शन will come for explanation. So only don't write comment, you have to give one example whether they have asked or not. You have to write, or you this way you put some values, and after execution what will be the change in that contents of register, whatever according to the instruction. So all these things you have to write. So if you are at least means if you are not sure with addressing mode or number of byte, then at least give example and write. इतना तो minimum आपको लिखना ही है. Okay, and if you are very much sure about your that instruction belongs to which group and what is the addressing mode, 1 byte है, 2 byte है या 3 byte है, तब ही आप लिखो. Otherwise this is compulsory to write the function and this example. Okay, so next instruction हमारी क्या है, move r comma m. Move r comma m means, what do you mean by M? As I already explained about M, M means memory. yeah, memory. So only you will say memory. Only you will say memory. It is a content of memory pointed by HL register pair, right? When you have see, when you have a content, if you are accessing the content of memory and that memory address is with HL register pair, then it is you can use or you can access that content with the help of word M, sorry, character M. So M जो है special, it is a memory pointer. HL is a memory pointer. If it is pointing to any memory location, then that content can be accessed
through that M character. It is not for DC and DE, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि M कहाँ यूज होना है, जब आपके कंटेंट मेमोरी से ले रहे हो और उसको पॉइंट कौन कर रहा है, HL रजिस्टर पे, राइट. So in this instruction, what you are doing, you are transferring the content of memory to रजिस्टर whose address is pointed by HL register pair. तो इसमें आपको क्या करना है, अभी मैंने क्लू भी बताया था, M है तो उसका एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट, एंड वन बाइट इंस्ट्रक्शन बिकॉज यू आर ऑल आर एक्सेसिंग रजिस्टर्स. एंड इन दिस इफ यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, मूव B, M, तो M मतलब क्या है, ये HL, तो दिस CFF इज द एड्रेस, और इस एड्रेस पे क्या है, 35. तो दिस 35 will transfer to register B, not this address. बहुत सारे स्टूडेंट एड्रेस ट्रांसफर कर देते हैं, नो, because M means content of memory pointed by HL register pair. Same way we have next instruction also. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव एम कॉमा आर. तो मूव एम कॉमा आर में सेम व्हाट वी हैव टू डू, इट इज रिवर्स ऑफ दैट मूव आर कॉमा एम. यहाँ पे नाउ वी हैव चेंज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. आर इज मूविंग टू द मेमोरी, मीन्स द कंटेंट ऑफ रजिस्टर यू आर मूविंग to memory whose address is pointed by HL register pair. तो आपको content of memory कैसे दिखाना है, सबसे पहला जो फर्स्ट ब्रैकेट है HL का, that is showing the address, that address is stored in HL, and when you put one more bracket, so it means the content of that location which is pointed by HL register pair. तो अभी अगर HL में F00 है, ठीक है, और उस मेमोरी लोकेशन पे 40 कंटेंट है, तो दिस कंटेंट विल ट्रांसफर टू मेमोरी. क्लियर, understood? So this is your third instruction. Next our instruction, so I'm taking a little bit fast because we have already done this instruction. So this is our fourth instruction, that is MVI data. So what do you mean by this instruction? MVI का क्या मतलब है, move immediate, means you are transferring this data to register R, means data is available immediate after the instruction. So I stands, I है तो it stands for immediate. तो addressing mode क्या है, immediate addressing mode, right? और number of bytes, why it is 2 byte, because data itself is 1 byte and opcode is 1 byte. तो जैसे मैंने क्लू बताया था आपको कि जहाँ पर आपको 2 डिजिट डेटा दिखता है उसका लेंथ कितना होता है, 2 बाइट. तो इन दिस इंस्ट्रक्शन, इन दिस एग्जाम्पल MVI A35, so what does it means, 35 means you are transferring this 35 into accumulator. Okay, and please mute yourself, someone is, everyone please mute yourself, somebody is talking. Okay, next is, next instruction again it is move immediate. Now here where is your data, where there your data is going, डेटा इज गोइंग इनटू मेमोरी. यहाँ पे डेटा कहाँ पे जा रहा है, रजिस्टर में, राइट, और यहाँ पे डेटा कहाँ जा रहा है, मेमोरी. मीन्स द डेटा अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन, इट इज मूविंग इनटू memory location. M stands for memory location whose address is pointed by HL register pair. तो HL के अंदर क्या स्टोर है, D000. It means this is the address of memory location D000, and here your data is stored. ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड नहीं, मीन्स यहाँ पे यू आर गोइंग टू स्टोर डेटा. तो व्हाट डज दिस मीन, I'm just clearing off.
So in this if you can see, यहाँ पर जो instruction है that is D000. Okay, so this D000 means your address, right? This is your address D00. Okay, and you want to store something here. That what you want to store, this 35. So this will transfer into memory with the help of this. Means if you want to transfer data which is given in your instruction, you can transfer to memory with the help of MVIM instruction. So here in this, what does it mean? That HL is already pointing to D00, and here you are transferring this 35H. So after execution of this instruction, this 35 data will transfer into memory. Understood? तो हमने यहाँ तक I think नहीं, one more instruction we have done in last class also, that is LXI. So what do you mean by LXI instruction? LXI is the most commonly used instruction in your programming. LXI means load register pair immediate. Means 16-bit data or address, whatever it is given in the instruction, that you are transferring into register pair. Understood? So you are transferring data register pair into where? Where you are transferring this data, you are transferring this data into pair. The pair can be DC, it can be DE, or it can be HL. So in this if you can see LXI at 3500, so what does it mean? 3500 can be your 16-bit data or it can be your address. So here the first two digits, that is 35, will transfer where, or it will load where? It will load in higher order register H, and 00 will be loaded in lower order register H. Understood? So this way we are able to transfer data into HL register pair. तो हम ये इंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली जब भी प्रोग्राम आते हैं तो इसी तरह से डेटा जो है वो मेमोरी में मेंशन किया होता है कि टू नंबर, लाइक वन एग्जांपल एडिशन ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर्स आर स्टोर्ड इन C050 एंड C051. तो हाउ यू आर गेटिंग दैट डेटा, हाउ डू यू गेट दैट डेटा? तो आपको मेमोरी को पॉइंट करना पड़ेगा. तो फॉर दैट यू कैन यूज LXI इंस्ट्रक्शन. तो अब जैसे 3500 अगर ये मेमोरी है तो 3500 क्या हो जाएगा? इट विल बी पॉइंटेड बाय, इस तरह से HL जो है इसको पॉइंट करने लग जाएगा. और यहाँ पे कुछ भी डेटा है देन आई कैन एक्सेस. उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है? अगर मुझे ये डेटा एक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र करना है तो आई कैन दिस विद द हेल्प ऑफ मूव ए कॉमा एम. ठीक है ना? एम किस लिए यूज़ होता है? एम इज़ यूज फॉर दिस मेमोरी कंटेंट whose address is with HL. ओके, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है एम वो किस पे डिपेंड करती है? LXI पे. जब तक आप LXI यूज़ करके HL में ये एड्रेस नहीं डालेंगे तब तक यू कैन नॉट यूज़ एम इन योर प्रोग्राम. एम कैन बी यूज ओनली व्हेन इट इज़ पॉइंटेड बाय और मेमोरी इज़ पॉइंटेड बाय HL रजिस्टर पेयर. तो हमने ये लास्ट क्लास में कवर अप किया था. I'm revising again. Now we have to start with next instruction, that is LDA. Okay, so in this instruction LDA means, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा पहले से ही पढ़ा था इंस्ट्रक्शन, load accumulator direct. What is the meaning of this instruction? Load accumulator direct. तो LDA क्या करता है? जैसे एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन LDA. हियर एड्रेस इज रिटन. इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मेमोरी का कोई एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल memory address is C050, right? This is your memory address.
Okay, so what does it mean? What is the meaning of this instruction? That the address of memory which is given in the instruction, whatever the data is available at that location, यहाँ पर जो भी data है, let's say 20 stored है, so when you execute this instruction, then this 20 will transfer into accumulator. Why it is called direct? Because direct address of the memory is given in the instruction. ये देखो, address of memory is given in the instruction, so you are accessing memory direct, so that's why it is direct. And its addressing mode is also direct addressing mode, because the address of memory location where your data is stored, that you are accessing directly. So what do you mean by this instruction then? The meaning of this instruction, that the address, the content of memory location whose address is given in the instruction will transfer into accumulator. So it's the addressing mode क्या है? Direct addressing mode. ग्रुप तो हम डेटा ट्रांसफर ही कर रहे हैं. Now what do you mean by bytes? बाइट्स मीन्स इट इज लेंथ. तो कितना लेंथ है इसका? इसका लेंथ आपको पता चल गया. LDA 3 एड्रेस है, तो एड्रेस का मतलब एड्रेस इटसेल्फ इज 16 बिट, राइट? तो C050 को तो 2 मेमोरी लोकेशन लग जाएंगे, और LDA को कितना मेमोरी लोकेशन लगेगा? 1 तो अगर मुझे ये पूरा इंस्ट्रक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो आई हैव टू गिव 3 मेमोरी लोकेशन टू स्टोर दिस इंस्ट्रक्शन. तो फर्स्ट बाइट, सपोज मैं अपना प्रोग्राम कहाँ से स्टोर कर रही हूँ? आई एम स्टार्टिंग स्टोरिंग माई प्रोग्राम फ्रॉम C00. ठीक है, तो LDA का कोड, जैसे आई रिमेंबर कोड, रिमेंबर द कोड ऑफ LDA, तो दिस इज लेट्स से 32 है. ओके, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन C001 में क्या जाएगा? C001 में, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द लोअर ऑर्डर बाइट, ठीक है, 50 will go first. Clear? And in third memory location, that is C002, then which last or higher order byte C0 will go. See, these are very small memory related things. क्योंकि आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. वाई? बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग, तो आपको ये सब आ रहा होगा ऑलरेडी. नथिंग न्यू फॉर यू. कुछ भी आपको ऐसे नया नहीं लगेगा कि वो कितने मेमोरी लोकेशन लेने हैं, क्या लेना है. तो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच आई एम एक्सप्लेनिंग अलोंग विद इंस्ट्रक्शन. So why it is called 3 byte? Because if you want to store, or if you are using this instruction in your program, then you need 3 memory location to store such type of instruction. So understood the concept of LDA? LDA means load the content of accumulator direct. Means what are you doing? You are transferring the content of memory into accumulator. Simple. Whose address is given in the इंस्ट्रक्शन. तो यही एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर. एग्जाम्पल क्या दिया है कि LDA C500, जैसे मैंने C050 लिया था, तो उसमें क्या स्टोर है मेमोरी में? 26. आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, दिस 26 विल ट्रांसफर इनटू accumulator. और C500 में भी it will remain same, because this is data transfer instruction where the source will not change. Okay, next is our STA address. अभी लास्ट हमारा क्या था? LDA एड्रेस. नाउ इट इज स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट. स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग जस्ट रिवर्स ऑफ LDA. हम LDA किस लिए यूज करते हैं? टू गेट डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड ट्रांसफर इनटू एक्यूमुलेटर. और स्टोर में क्या करते हैं? रिवर्स ऑफ दैट, दैट माय डेटा इज इन एक्यूमुलेटर एंड आई एम ट्रांसफरिंग इनटू मेमोरी लोकेशन. तो मोस्टली क्या होता है, जब हम इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है. अभी आपको एक और मैं इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बताती हूँ. जैसे मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिया था, सॉरी, this instruction I have taken LXI H
C0 H C050. See, this instruction I have taken. So what does it means? इसका क्या मतलब था कि मैंने C050 एक मेमोरी लोकेशन है एंड आई हैव लोडेड दिस एड्रेस इनटू HL रजिस्टर पेयर. ओके, मैंने इसको पॉइंट कर दिया. नाउ इफ डेटा इज हियर 10, I want to transfer this data into accumulator. So after this instruction, what you will write? Move A, comma N. ठीक है, दिस यू विल राइट. तो इससे इन दोनों इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, तो दिस डेटा will transfer into accumulator. This is the meaning of these two instructions that I am pointing HL C050 and जो ये डेटा है वो मैंने accumulator में transfer कर सकती. Now this same procedure or this same function you can do with the help of previous instruction, that is LDA C050. If I write like this, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं. LDA C050 का क्या मतलब है, the data available at this location will load into accumulator directly. अंडरस्टूड. दोनों आप प्रोग्राम रॉन्ग नहीं हो जाएगा अगर किसी स्टूडेंट ने एक्यूमुलेटर में डेटा जो है डायरेक्ट इस इंस्ट्रक्शन से ट्रांसफर कर दिया, और प्रोग्राम रॉन्ग नहीं होगा इफ द स्टूडेंट इज यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन. दिस इज डायरेक्ट वे ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी and this is indirect way of accessing memory. but mostly हम ये use करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉक है, मेरे को C050 के बाद C051 भी एक्सेस करना है, then I can increment the content of HL register pair and point to this location. भाई HL में C050 है, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूँ तो इट विल गो टू द नेक्स्ट लोकेशन ना. तो with the help of this instruction I can traverse or I can move consecutively in my memory. but इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता. now I cannot use INX here. इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ मैं यूज़ नहीं कर सकती, बट हेयर आई कैन यूज़ दिस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जब हम ब्लॉक ये लगने में तो ये ज़्यादा अच्छी लग रही है इंस्ट्रक्शन, बट इट इज़ ओके व्हेन यू आर एक्सेसिंग ओनली वन मेमोरी लोकेशन. बट इफ़ यू आर हैविंग consecutive memory location and you are having data and you want to access that data also, then it is better to use this so that we can just by simply incrementing the content of HL register pair we can move to next memory location. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट. आपका कोई भी लॉजिक आप लगाओ, ठीक है, अगर आप एक नंबर या दो नंबर पे काम कर रहे हो तो आप LDA यूज़ करो. बट अगर आपके पास 10 या 20 मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी है या लूप में डालना है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आपको LXI यूज़ करना पड़ेगा. तो इसलिए हम प्रेफर मोस्टली यही करते हैं, LXI से एक्सेस करना, ताकि बच्चों को एक ही कॉन्सेप्ट थोड़ा रहे. बाकी अगर एक या दो नंबर इफ यू वांट टू एक्सेस देन यू कैन यूज LDA. क्लियर? सो STA का क्या मतलब है? STA मीन्स रिवर्स ऑफ LDA, मीन्स द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज ट्रांसफरिंग टू मेमोरी लोकेशन. तो अब जैसे यहाँ पर STA C500 है, तो जो कंटेंट है मेमोरी लोकेशन के वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, C500 में. ठीक है, तो अगर कंटेंट एक्यूमुलेटर का 35 है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट 35 है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, तो C500 जो मेमोरी है उसके अंदर ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा. ओके, सो दिस विल ट्रांसफ़र एट दिस लोकेशन. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये बताता है कंटेंट ऑफ मेमोरी.
C500 के कंटेंट वो बताता है। तो एस टी ए और एल डी ए दोनों, एस टी ए हम जनरली कब यूज़ करते हैं? टू स्टोर फाइनल रिजल्ट। अगर मैंने बोला टू नंबर से ऐड करो, ऐड करने के बाद आपको पता है रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही आएगा, देन यू ट्रांसफर दैट रिजल्ट इनटू वेयर, इनटू मेमोरी लोकेशन। अगर मैंने बोला तो कैसे ट्रांसफ़र करोगे? तब आपको ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा कि आपका जो फाइनल रिजल्ट जो एक्यूमुलेटर में आ गया है, मैंने बोला अब उसको F00 पे ट्रांसफ़र करो, तो यू सिंपली राइट STA F00, तो दिस वे यू आर एबल टू ट्रांसफ़र योर डेटा। ठीक है। और अगर कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन है, C500 में फर्स्ट नंबर, C501 में सेकेंड नंबर, और रिजल्ट स्टोर करना है C502 पे, तो हम LXI से INX करके जा सकते हैं। तो वो सब हम करेंगे प्रोग्रामिंग में, बट स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर प्रोग्रामिंग ऑल्सो, ताकि थोड़ा सा वहाँ पे आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करो तो इंस्ट्रक्शंस याद हो कि हाँ ये इसके लिए यूज़ हो रही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज LHLD एड्रेस और SHLD एड्रेस। तो आई टेक दिस 9th and 10th इंस्ट्रक्शन आफ्टर 11th and 12th इंस्ट्रक्शन। ओके, क्योंकि 9th और 10th इंस्ट्रक्शन, ये 11th और 12th इंस्ट्रक्शन जो है वो रिलेटेड है आपके, मतलब ST और LDA के जैसे, STA और LDA के जैसे। STA और LDA क्या कर रहे हैं? वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, मीन्स द एड्रेस इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। हमारा जो LDA है, जैसे मैं आप ये यूज कर रही हूँ LDA C050, ठीक है। मैंने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया था, तो इसका क्या मतलब था? What do you mean that by this instruction, that C050 is having value 10, right? ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि एक्यूमुलेटर में ये ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज इंस्ट्रक्शन इज गिवन। LDA X रजिस्टर पेयर भी यही काम करता है, but this is indirect instruction. Why? Because address is not given in the instruction. Instead they have given what? Register pair. And here you have only two register pair, BC or DE, not HL. Why not HL? Because HL अगर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास M इंस्ट्रक्शन है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है ना। जब मैंने इसको LXI HC050 किया तो मेरे पास था मूव ए कॉमा M, मीन्स M is specially used for HL pair. But if memory is pointed by BC, if memory is pointed by BC or DE, then what will you do? ठीक है। मैंने ये तो हो गया डायरेक्ट। वाई आई एम राइटिंग हियर? बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट हाउ दे आर रिलेटेड, मतलब दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, बट फंक्शन इज सेम, to access memory and transfer data into accumulator. But here I am doing directly and here I am doing indirectly. तो indirectly के लिए means address is in register pair, और एड्रेस रजिस्टर पेयर में कौन कौन से? सिर्फ दो, BC और DE। अगर BC से आप मेमोरी को पॉइंट कर रहे हो तो क्या आप मूव ए कॉमा M लिख सकते हो इसके बाद? कैन यू राइट और कैन यू यूज दिस इंस्ट्रक्शन मूव ए कॉमा M? नो। Why? Because M is specially designed for HL register pair. HL is a memory pointer. If address is pointed by HL, then only you can use M. But what about BC, अगर BC से मैंने इसको पॉइंट किया और मुझे ये डेटा एक्यूमुलेटर में ले जाना है, तब मेरे को ये इंस्ट्रक्शन यूज करना है। तो if your address is pointed by BC or DE register pair, then you cannot use this, then you have to use
LDAXB। रजिस्टर पेयर की जगह आपने फर्स्ट लेटर लिखना है BC। तो अब ये दोनों इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही हैं? ये दोनों इंस्ट्रक्शन भी वही काम कर रही है जो ये इंस्ट्रक्शन काम कर रही है। मीन्स दिस इज एक्सेसिंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी whose address is pointed by BC register pair. Okay, and this instruction is also doing, it is also transferring the content of memory whose address is given in the instruction. Understood the difference? The LDA or LDAX का difference should be very clear to you, that LDA is a direct access of memory and LDAX is a indirect access of memory. Means you are accessing the content of memory but via register pair, and that register pair is also, or it should be BC or DE. HL के लिए we have M type of instruction. तो that difference you should be clear कि M किस लिए यूज, M की इंस्ट्रक्शन कब यूज होगी? जब LXI में आपका H यूज होगा, मीन्स मेमोरी को H पॉइंट करेगा, और अगर BC और DE पॉइंट कर रहा है और उस मेमोरी के कंटेंट को आपको एक्यूमुलेटर में लाना है, then you will be using LDAX. Okay, understood? So the content of memory location whose address is stored in register pair are loaded into accumulator, and the content of memory locations remain unchanged, and register pair can be BC or DE. Understood this concept? It can be BC or DE. Clear this? आई होप इट इज क्लियर। तो STX क्या करता है? STX जस्ट अपोजिट टू LDAX। अब अगर मुझे डेटा जो है एक्यूमुलेटर से मेमोरी में ट्रांसफर करना है, and whose address is pointed by, and the memory address is pointed by HL or DE or BC, then I have to use STAX. ठीक है ना? तो दिस इज सेम लाइक योर STA। ठीक है, STA का क्या मीनिंग था? अगर मैंने लिखा STA C080, ओके, तो C080 में व्हाट आई हैव टू डू? C080 में मुझे क्या लिखना है? मुझे यहाँ पर डेटा ट्रांसफर होगा। मीन्स अगर एक्यूमुलेटर में 20 है, ठीक है, तो 20 will transfer here after execution of STA, right? तो ये इसका मतलब है, मीन्स एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन, but where you are going to use STX? when it is pointed by BC or DE। ठीक है, तो जब BC और DE इसको पॉइंट कर रहा होगा, तब आप क्या करोगे? तब आपको इसे यूज करना है। जैसे अभी सेम मैंने LXI LDX के लिए समझाया था, सेम आई एम डूइंग फॉर STAX LXIB C080। Understood? Now C080 is pointed by BC. So I cannot use here now move A comma M। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकती कि कंटेंट एक्यूमुलेटर के मैं मेमोरी में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो फॉर दैट आई हैव टू यूज STAXB। तो इसका क्या मतलब कि एक्यूमुलेटर में लेट्स से 20 था, अब सिंस BC इज होल्डिंग दिस, तो कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विल ट्रांसफर एट दिस लोकेशन। अंडरस्टूड? तो STA का भी यही काम है, टू ट्रांसफर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी, और STX का भी यही काम है, बट वाया रजिस्टर पेयर। मीन्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी इज इन रजिस्टर पेयर। कौन से रजिस्टर पेयर? BC और DE।
स्पेशली BC और D। HL है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो हम मूव वाले इंस्ट्रक्शन, M वाले इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली यूज करेंगे। क्लियर दिस पॉइंट? तो दोनों का डिफरेंस भी पता चला, काम दोनों का सेम ही है, but the way of accessing memory is different directly or indirectly. If address is there, then you can use STA, and if address is not given or it is appointed by some register pair, then you can use STAX, right? So both are doing same function, but the way it is different. Clear? Next अभी जो मैंने दो इंस्ट्रक्शन पीछे रह गई थी, why I have taken this, so that you can compare with STA and LDA. Now the next instruction is LHLD और SHLD. केयरफुली इस इंस्ट्रक्शन को सुनना. वाई? बिकॉज इतना प्रोग्रामिंग में हम आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते इसको, मीन्स बेसिक लेवल पे. हायर लेवल पे तो नो डाउट करते ही हैं, बट बेसिक लेवल पे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बहुत कम ये यूज़ कर रहे हैं. बट थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड में ये इंस्ट्रक्शन LHLD और SHLD दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं. तो इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है, लोड HL एंड डायरेक्ट. बट इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है मिस्टेक करते हैं. क्या मिस्टेक करते हैं? अभी इसमें लोड H एंड L रजिस्टर डायरेक्ट, इसका क्या मतलब है? डायरेक्ट मतलब एक तो एड्रेस गिवन है, एड्रेस गिवन है तो ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की हो गई? 3 बाइट. जहाँ एड्रेस है, एड्रेस 16 बिट होता है, तो दिस इंस्ट्रक्शन इज 3 बाइट. उसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, बिकॉज यू आर एक्सेसिंग मेमोरी लोकेशन डायरेक्टली. अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे अब ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है, LHLD 2100. तो 2100 इज योर मेमोरी. You can see this, 2100 is your memory. Okay, I'm just scrolling this. 2100 is your memory location. तो लोड HL डायरेक्ट का क्या मतलब है कि this instruction is basically accessing two consecutive memory location. अब इसमें क्या लिखा है? लोड HL डायरेक्ट. तो HL तो 16 बिट होता है, मीन्स H एक में 8 बाइट 1 बाइट स्टोर होगा और L में यू विल स्टोर 1 बाइट, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको 16 बिट डेटा देना है, और डायरेक्ट मीन्स यू आर एक्सेसिंग मेमोरी, और हर एक मेमोरी में यू हैव ओनली 1 बाइट. तो इसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शन में, that you are accessing two consecutive memory location, means you are transferring two consecutive memory location data into where? Into HL register pair. तो जिसका एड्रेस, जो एड्रेस गिवन है इन द इंस्ट्रक्शन, that content of memory will transfer into L. Okay, and then it is automatically incremented by 1, and the content of second consecutive memory location will transfer into H register. Clear? तो इस इंस्ट्रक्शन में, ये इंस्ट्रक्शन आई डोंट नो, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है, बट बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड में भी, चाहे एग्ज़ाम नॉर्मल कॉलेज एग्ज़ाम में भी रॉन्ग लिखते हैं. वो क्या करते हैं, ये जो एड्रेस है 2100 उसको HL में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग. उसके लिए हमारे पास LXI इंस्ट्रक्शन होती है कि जो भी एड्रेस अगर है उसको HL में ट्रांसफ़र करना है, BC में करना है या DE में करना है, then we have LXI instruction. But if I want to store content of memory into HL,
Then we have direct instruction, but since HL is 16 bit, it can hold 2 byte data, and memory is having 1 byte data. So in this instruction, it will transfer 2 consecutive memory location data in HL register pair. तो understood this concept. तो जो एड्रेस गिवन है इंस्ट्रक्शन में, उस पे जो डेटा है, ये जैसे डेटा 21 पे 31 है, तो पहला डेटा किस पे जाएगा, लोअर ऑर्डर बाइट. ठीक है ना, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं ना, लोअर ऑर्डर बाइट पहले स्टोर करते हैं, हायर ऑर्डर बाइट बाद. तो जो भी डेटा है, जो भी एड्रेस दिया है, उसका जो कंटेंट है वो एल में जाएगा. एल इज द लोअर ऑर्डर बाइट ऑफ एच एल, और ऑटोमेटिकली इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, और 2101 का डेटा किस में चला जाएगा, एच. तो दिस वे this instruction will access two consecutive memory location. Clear? और एड्रेसिंग मोड आपको पता चल गया 3 बाइट, और it is basically data transfer group, as we are already doing this group, and this is direct addressing mode. Understood? Clear? उसके बाद हमारा सेम इंस्ट्रक्शन है, रिवर्स ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन, दैट इज SHLD. Okay, so SHLD instruction, reverse of that, it means now you are transferring content of HL register pair into memory location. तो अब HL तो 16 bit data हो गया ना, H में 1 byte, L में 1 byte. So now we need 2 consecutive memory location to store this data. तो for that, फर्स्ट व्हाट विल हैपन, जो भी एड्रेस इसमें दिया है उस पे किसका डेटा ट्रांसफर होगा, एल का, एंड देन इट इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड बाय 1, एंड नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे विल बी एबल टू ट्रांसफर द डेटा ऑफ एच रजिस्टर. सी इन दिस एग्जांपल इज गिवन विद डायग्राम इज नॉट गिवन. सो यहाँ पे एच के कंटेंट 32 और एल के कंटेंट 35. तो अब मैंने अगर यहाँ पर लिखा SHLD 2100, तो व्हाट डज इट मीन्स कि 2100 पे क्या स्टोर हो जाएगा, 2100 पे L का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा विच इज 35, राइट. ठीक है, और उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन क्या हो गई, 2101. नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन इज 2101. तो उस पर किसका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, H का, दैट इज 32. तो मीन्स वी नीड 2 consecutive location to store the content of HL. क्लियर. तो SHLD मतलब स्टोर HL कंटेंट डायरेक्ट. डायरेक्ट जहाँ पे है तो वो ही बढ़िया है, पता चल जाएगा कि इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एड्रेस गिवन है तो लेंथ इज ऑल्सो 3 बाइट, ग्रुप तो हम डेटा ट्रांसफर कर ही देंगे. So we have almost finished all instruction, only one instruction is left, last instruction from this data transfer group, that is exchange. Clear? The exchange instruction is basically exchanging the content of two memory data, two register pair data, exchanging the content of two memory data. Clear? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो रजिस्टर पेयर कौन से यूज कर रहे हैं, HL और DE, राइट. तो अगर आप इसमें देखोगे BC इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. MCQ में भी आता है कई बार क्वेश्चन, एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन विल एक्सचेंज द डेटा बिटवीन विच टू रजिस्टर पेयर, तो HL एंड DE. तो हायर ऑर्डर बाइट से एक्सचेंज करेंगे, लोअर ऑर्डर बाइट से एक्सचेंज करेंगे. मीन्स HL में हायर ऑर्डर बाइट क्या हो गया, H, और DE में हायर ऑर्डर बाइट क्या हो गया, D. तो H के कंटेंट और D के कंटेंट आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे,
और L के कंटेंट और E के कंटेंट will get exchanged to each other. So we can use this instruction to basically exchange. Swapping जैसे कर सकते हैं, but swapping of two memory location we can do, and swapping of two 16-bit numbers we can do. But अगर आपको प्रोग्राम आता है कि swapping of two values stored in location, तो आपको नंबर्स को एक्सचेंज करके दिखाना है. हमारा प्रोग्राम भी है उस पर, टू ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ वन ब्लॉक इनटू अनदर ब्लॉक. तो कंटेंट ट्रांसफर करने तो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि फिर एक्सचेंज क्यों नहीं यूज़ करते. एक्सचेंज में मेमोरी एड्रेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्योंकि हम जब दो ब्लॉक है, जैसे 5 नंबर्स का एक ब्लॉक है, 5 कॉन्जिक्यूटिव लोकेशन, जैसे C050, C051, 52, 53, 54. ऐसे ही वहाँ का जो डेटा है मुझे लेट से D020 से D021, 23, 24 पे ट्रांसफ़र करना है. तो मैं एक मेमोरी को HL से पॉइंट कर दूंगी, C050 को लेट से HL से, और दूसरे को DE से पॉइंट कर दूंगी. देन आई बी एबल टू एक्सचेंज. बट उसमें क्या होगा, एक्सचेंज में Ma'am, for exchange, how to tell the computer which addresses to exchange? That's what I'm saying. That HL में मुझे पहले उसको लोड करना पड़ेगा ना. जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा LXI H, तो यहाँ दे दिया C050. ठीक है, तो अब HL में क्या आ गया, C050. और LXI में क्या दे दिया, सपोज D में मैंने दे दिया D020. ओके, तो अब HL में क्या है, C050, और DE में क्या है, D020. If I use this instruction exchange after these two instruction, then what will happen, ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया. तो C050 किस में आ जाएगा, DE में, और D020 किस में चला जाएगा, HL में. After that you can check your result. But if these are memory addresses, ठीक है, अभी ये मेमोरी एड्रेस है C050, यहाँ पे सपोज 10 स्टोर है. ओके, और C051 में क्या स्टोर है, 20. मैंने बोला इन दोनों को एक्सचेंज करो. सॉरी, ये क्या लेना है मुझे, 1 मिनट, आई क्लियर होती. ठीक है, C050 में आपके पास स्टोर है 20 लेट्स से, और D020 जो अभी मैंने पॉइंट किया था, हियर इट इज लेट्स से 10. नाउ मैंने बोला एक्सचेंज दीज टू. तो आर यू एबल टू डू विद एक्सचेंज, नो, क्योंकि जब आप एक्सचेंज यूज करोगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चले जाएगा. ठीक है, डेटा तो वहीं का वहीं है, मेमोरी एड्रेसेस जो है एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए. डेटा आपको आंसर राइट आ जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज तो किया ना. नाउ इट इज पॉइंटिंग टू D020 पे 20 आ गया, C050 पे 10 आ गया. मीन्स यू आर एबल टू एक्सचेंज, यू आर एबल टू एक्सचेंज दैट डेटा, बट नॉट द कंटेंट ऑफ memory location. You are exchanging the content of memory address. क्लियर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. आप क्या एक्सचेंज करने के लिए प्रोग्राम मांग रहा है, कंटेंट ऑफ मेमोरी और मेमोरी एड्रेस. तो मेमोरी एड्रेस से भी हम एक्सचेंज करते हैं, हमारा प्रोग्राम चल जाता है. बट समटाइम्स हमारा मॉडरेटर मार्क्स नहीं देता, वो बोलेंगे कि मैं पूरा कॉपी वाला प्रोग्राम होना चाहिए, देन ओनली विल गिव मार्क्स. तो वो हम करेंगे प्रोग्राम, हम कंटेंट को एक्सचेंज करेंगे इंस्टेड ऑफ मेमोरी लोकेशन. बट इफ यू वांट टू ट्रांसफर the content of data, if you are considering this itself as a data, then you can use this instruction to exchange. और कोई प्रोग्राम में मेमोरी एड्रेस भी एक्सचेंज करनी हो, देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस
instruction. And this is, here you are using register, so this is 1 byte instruction, and addressing mode is register addressing mode because you are using HL. ये implicit नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट उसको implicit लिख देते हैं ये सोच के कि इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब डेटा एक्यूमुलेटर में है। कहाँ है डेटा एक्यूमुलेटर में? accumulator में तो डेटा है नहीं। when your data in accumulator, then only it will follow implicit or implied addressing mode. But if your data is in HL or D register pair, then it cannot follow implicit. Then it will be a simple addressing mode, that is register addressing mode. Understood this concept? So these all are 13 डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। तो हर एक का आपको क्या कहते हैं हम उसको, एड्रेसिंग मोड यू ऑल शुड बी क्लियर विद ऑल इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ द एड्रेसिंग मोड, राइट? Then what is the length of each instruction, and then what will be the group, अभी तो हम सब डेटा ट्रांसफर ग्रुप ही कर रहे हैं, एंड देन द फंक्शन विद एग्जाम्पल। तो ये सब आपको ऐसे नहीं है बहुत टफ है इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इजी, बट यू हैव टू रीड 3 to 4 times, then only you will understand the function of each instruction and how to and where to use these instruction in your program। तो वो जब आपको functions बार बार आप पढ़ोगे 3-4 times इसको पढ़ो and think where you can use this instruction in your program, then you will be able to write programs. Clear? So this part we have done. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, I can start. Still, I'm having 20 minutes, so I'll be able to start arithmetic group. Any doubt in any instruction? And no problem. If you are not able to answer, or if you don't have any doubt, then there is no issue. You just read all those instructions, and still if you're finding any problem, then I can explain. I can explain all those instructions with example, not an issue. But you should be clear the concept of all instruction. Yeah. So we'll start with next group, that is arithmetic group. In arithmetic group, as we have already discussed, that is our second group where you can use all arithmetic operation related instruction. Arithmetic operation means addition, subtraction, increment and decrement instruction. ठीक है, इस पे एक्सप्लेनेशन तो आती है, इसके बेस पे प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि आपको नंबर दिया एक्यूमुलेटर में सो एंड सो नंबर इज देयर, रजिस्टर बी में सो एंड सो नंबर इज देयर, then after execution of this instruction, let's say addition, then what will be the answer? इस तरह से they will give you 3 instruction and they will give you content of accumulator or content of any memory or register which is used in that instruction, and then you have to solve with the help of binary format as computer is taking। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके, मीन्स 8-bit पैटर्न में आपको कन्वर्ट करके यू हैव टू सॉल्व दैट इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो अभी विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शन जो हम पूरे फर्स्ट चैप्टर में करते ही आ रहे हैं, दैट इज एडिशन इंस्ट्रक्शन। तो वी हैव 6 एडिशन इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? तो अभी टोटल अराउंड 19 to 20 इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें से 6 इंस्ट्रक्शंस जो हैं इट इज़ बेसिकली फॉर एडिशन। इट विल परफॉर्म एडिंग टू 8-bit नंबर, ठीक है, और इट विल ऐड टू 1 byte नंबर। तो आपको फेमिलियर ही है ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऐड आर। ऐड आर का क्या मतलब है, लाइक दिस हमने की थी ना ये इंस्ट्रक्शन ऐड बी,
बहुत कॉमन इंस्ट्रक्शन हो गई है अब तो ये। ऐड बी का क्या मतलब था? आई एम एडिंग द कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर। इसमें से एक रजिस्टर जो है बी है, एंड बाय डिफॉल्ट एक रजिस्टर एक्यूमुलेटर है, एंड फाइनल रिजल्ट इज गोइंग टू स्टोर इन एक्यूमुलेटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। नाउ वेरी मच क्लियर टू यू। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन जो हैं add R में, you are adding to register content, so it's like addressing mode is register addressing mode. Group, now we have started with arithmetic group, so it is belonging to arithmetic group. And since we are adding to register content, so register में अगर data है तो जैसे मैंने बताया था, it is one byte instruction. अब आप जब एक्सप्लेन करोगे ये इंस्ट्रक्शन, तो दिस विल बी योर फंक्शन that the content of register R are added to content of accumulator, and final result is there in accumulator. अब और एक बात मैंने फ्लैग्स के बारे में भी बताई थी। फर्स्ट ग्रुप जो डेटा ट्रांसफर ग्रुप है, उसमें फ्लैग्स जो हैं अफेक्ट नहीं होते, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोसेसिंग, वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. But in arithmetic groups, all flags may affect based on result. तो it may affect all flags. तो आपके जितने भी 5 फ्लैग्स हैं, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, एंड वन मोर इज देयर ना, कैरी. तो ये सब फ्लैग्स अफेक्ट हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन द डेटा विच यू आर टेकिंग फॉर प्रोसेसिंग. तो अभी आपको जब एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इंस्ट्रक्शन बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल. तो जैसे अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ऐड डी. तो 35 डी में है और एक्यूमुलेटर में 5 है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू बाइनरी. आपको टेबल आती ही है, 4 बिट टेबल. 0 0 0 0, पहला नंबर 0 1 2 3, इस तरह से टेबल बनानी सिखाई थी. टिल 9 तक ऐसे ही चलना है. फिर ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर्स चलते हैं. तो कैसे लिखते हैं, फिर टेबल बताया था. यहाँ का जो सबसे लीस्ट होता है उसको ऑल्टरनेट चेंज करना है, 0 1 0 1. ठीक है. सेकेंड पोजीशन को कैसे चेंज करना है, 2 zeros 2 1. थर्ड पोजीशन को कैसे चेंज करना है, 4 zeros 4 1 लाइक दैट. और नेक्स्ट पोजीशन को 8 zeros 8 1. तो दिस वे यू आर एबल टू फर्स्ट राइट ऑल 16 कॉम्बिनेशन. क्लियर. तो ये जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं, ये आप रफ में पहले से ड्रॉ कर लोगे, और यू हैव टू मेक दिस टेबल. देन इट विल बी इजी टू टेक एनी डेटा. जैसे 35 का डेटा है, तो 3 का क्या डेटा होता है, 0 0 1 1. दैट यू हैव टू टेक. और 5 का डेटा क्या है, एज वी ऑलरेडी डन इन 11th स्टैंडर्ड, 0 1 0 1. 5 में 0 का डेटा क्या है, 0 0 0. तो दिस इज योर 0 0 0. एंड 5 का 0 1 0. ठीक है. तो दिस वे यू हैव टू रेफर दिस 4 बिट टेबल. 4 बिट मतलब 2 raised to the power 4, 16 कॉम्बिनेशन यू विल गेट. और हमारा जो डेटा है वो हमारा 4 बिट रिप्रेजेंटेशन का डेटा है. ठीक है ना. हर एक डिजिट जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, 8 बिट से. हमारा जो प्रोसेसर है वो 8 बिट का है. तो हर एक 8 बिट डेटा में जो हर एक नंबर है वो 4 बिट का है. क्लियर. उसके बाद एडिशन के रूल्स क्या हैं, दैट यू नो. सिंस वी आर डूइंग एडिशन, तो 0 + 0 0. I am taking this first instruction only with detailed explanation. Then other instruction we will just go with the function. 0 + 1 1. Then 1 + 0, 1 + 0 again 1. And then 1 + 1 क्या होता है, that is 1 + 1 it is 10. Yeah. So this is your rules. And if it is 111, then what is that rule? It is 11.
क्लियर? तो अभी आप यही रूल्स फॉलो करके एडिशन कर सकते हो. 1 + 1 कितना हुआ 10. देन देर इज अ कैरी. देन 1 + 0 + 1 1. Then no carry. 1 + 1 10. Then there is a carry. 1 + 0 + 1 1. Then again 1. Then again 1. Then 0 + 0 0. 0 + 0 0. तो ये जो आंसर आएगा उसका अगेन यू नीड टू कन्वर्ट इन हेक्सा. तो 001 का कोड क्या होता है 3. और 1010 का कोड क्या होता है 8. क्लियर? तो दिस वे यू आर एबल टू परफॉर्म एडिशन. आपको एज ए एग्जाम्पल यू हैव टू शो. अब ये जो लिखे हैं कंटेंट ऑल फ्लैग्स में अफेक्ट, तो वो हमने फ्लैग का जब टॉपिक किया था तब हमें पता ही है ये फ्लैग्स कैसे आएंगे. आई एम डूइंग दैट पार्ट ऑल्सो. वाई साइन ज़ीरो? क्योंकि इसका एम एस भी जो है 7 बिट ज़ीरो है. तो अगर 7 बिट ज़ीरो है तो नंबर इज पॉजिटिव, तो साइन फ्लैग इज रीसेट. वाई ज़ीरो फ्लैग इज ज़ीरो? बिकॉज सम कंटेंट्स आर देयर इन द result. So zero flag will reset to zero because the content of result is non-zero. Y parity is 1. अब you now you count कितने number of ones हैं. 1 2 3 4. Means you have 4 ones. तो means even ones. तो ones even जब ones होते हैं then parity will set to 1. Carry 0 क्यों है? Is there any ninth bit is generating after addition? No ninth bit over here. So carry flag will reset to 0. Auxiliary carry flag के लिए हम क्या देखेंगे? फोर्थ पोजीशन. या फोर्थ पोजीशन देखना है. दिस इज D0 D1 D2 D3. इस पे देखो 0 + 0 कर रहे हैं, पीछे से कैरी है यहाँ पे. यहाँ से कोई कैरी जा रहा है इसको D3 से D4 पे. इस पोजीशन को जब आपने सॉल्व किया, ये वाला पोजीशन 0 + 0, पीछे से 1 + 1 10 आया, यहाँ पे कैरी था, ये D3 पोजीशन है. क्या D3 को जब ऐड करने के बाद कोई कैरी जनरेट हुआ है? नो. देन इट इज रीसेट. क्लियर? सो दिस इज एडिशन. इस तरह से आपको एडिशन परफॉर्म करनी है इन दिस. ओके. तो विच इंस्ट्रक्शन आपको कैसे आपको ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना है. तो फ्लैग रजिस्टर्स हमने यहाँ पर फ्लैग टेबल में दिखा भी दिए हैं कि आफ्टर एग्जीक्यूशन फ्लैग के क्या कंटेंट है. आप सबको पता ही है पोजीशंस ऑफ ईच फ्लैग. दिस इज साइन, दिस इज ज़ीरो, दिस इज ऑक्सिलरी कैरी, this is parity, and this is carry. So you have to put it this way in this table. Now I think this is clear. So this uh, full explanation you can write in 1 mark. Don't worry that only 1 mark. Why should I write so much? No, at least till here. Don't give with all flags. सीधा लिख दो all flags are affected. ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. बट आप ये लिख सकते हो कि अरिथमेटिक ग्रुप में सारे फ्लैग्स अफेक्ट हो सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन डेटा और इंस्ट्रक्शन. क्लियर? तो इतना इलेबोरेट भी करने की ज़रूरत नहीं है. बट दैट मच पार्ट, एटलीस्ट दिस पार्ट शुड बी देयर while explaining that what will be the function of this instruction, and you have to solve that instruction with example. Clear? And if you can write about addressing or number of bytes used in this instruction, then also very good. But for this is extra. This is just for explanation कि कैसे हम इसको यूज करते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं. Clear? Now next I'll cover 3 instruction. I'll be able to cover 3 instruction of addition. तो अब सी हमारी 3 इंस्ट्रक्शन है, मैं यहीं लिख रही हूँ. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन, दैट इज ऐड आर. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी हमारी विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज ऐड एम. ठीक है? और थर्ड इंस्ट्रक्शन आएगी एडीआई डेटा.
क्लियर। एक फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दी ना। ये जो है तीनों इंस्ट्रक्शन का काम यही है, टू परफॉर्म एडिशन। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तीनों का जो सेकेंड डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे है, ठीक है ना। तो अगर डेटा आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में है तो आई कैन नॉट यूज एड आर और एड एम, तो आई हैव टू यूज एडीआई डेटा। बट मेरा डेटा अगर मेमोरी में है तो आई कैन नॉट यूज एड आर और एडीआई डेटा, आई हैव टू यूज एड। क्लियर। तो इसीलिए हमारी 74 इंस्ट्रक्शंस हैं। एडिशन की ही 6 इंस्ट्रक्शन है, इंक्रीमेंट की 3 इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की वी हैव 6 इंस्ट्रक्शन, कंपैरिजन की वी हैव 3 इंस्ट्रक्शन, लाइक दैट। मीन्स तो कॉन्सेप्ट लिमिटेड है बट उनके वेज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड उस पे जो है हमारा ज़्यादा फोकस है। ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस क्यों रेंज बढ़ गया? बिकॉज ऑफ वेयर इज़ योर डेटा। तो फर्स्ट, एज वी हैव ऑलरेडी डन, that if my data is in register I'll be using this instruction, जैसे add d। एक डेटा d में है और by default first data और any one data should be in accumulator। क्लियर? तीनों केसेस में। अब हम दूसरी इंस्ट्रक्शन करेंगे add m। तो add m इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? अभी एडम इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? दैट आई एम एडिंग द कंटेंट ऑफ मेमोरी सिंस इट इज एम। तो इसका क्या मतलब है? मेमोरी इज पॉइंटेड बाय एच एल रजिस्टर पेयर। कंटेंट ऑफ मेमोरी आई एम एडिंग विद द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सो कंटेंट ऑफ मेमोरी whose address is pointed by HL register pair I am adding with accumulator, and again final result will store in accumulator। जैसे अब एग्जाम्पल दिया है D00, तो दिस इज द एड्रेस ऑफ योर मेमोरी। यहाँ पे आपका मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन है D000। उसमें यहाँ पे उसने क्या स्टोर किया है? 51। ओके, 51 स्टोर है। दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, नॉट अ डेसिमल नंबर। एच इज रिटन। और एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर है? 35। तो तो मेरा एक डेटा मेमोरी में है और एक डेटा एक्यूमुलेटर में है, तो कैन आई यूज दिस एड आर? नो, I have to use add m if it is pointed by HL register pair। Clear? तो then I can use add m। तो जब add m होगा तो accumulator का 35 और इस memory location का 51 will get added and final result will store in accumulator। तो आप ये एज अ होमवर्क कर सकते हो कि 51 और 35 जब आप ऐड करोगे तो कैसे प्रोसेसर करता है। तो 35 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 0011, 5 को कन्वर्ट करेगा 0101, ठीक है, फॉरबिट फॉर्मेट में। 51 है तो 0101 और 1 है तो 0001। तो अब आप इसको अगर ऐड करो तो 86 ही आएगा। करके देख लो, 1 + 1 10 होता है, then it is 1, तो here 1 will come, here again it is 1, then 0, 1 + 1 10, here is carry, so 1 + 1 10, again there is a carry, 1 + 1 10, again there is a carry, तो 1। ठीक है, तो 100 क्या हो गया? ये बाइनरी कोड 8 का है और ये बाइनरी कोड 6 का है, तो योर आंसर इज 86। तो जब आपका डेटा मेमोरी में हो और वो पॉइंट कर रहा हो HL से, देन आई कैन यूज एडिट। ठीक है। दूसरा है एडीआई डेटा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था? एड आर में दोनों डेटा रजिस्टर में, एड एम में एक डेटा एक्यूमुलेटर में और दूसरा मेमोरी से एक्सेस कर रहे हैं। और एडीआई डेटा में क्या है? एड इमीडिएट मीन्स योर डेटा इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गोइंग टू ऐड विद एक्यूमुलेटर, राइट। तो एडीआई डेटा में अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे इसमें एडीआई डेटा का, ठीक है। तो एडीआई डेटा का अगर आप एग्जाम्पल देखो, सो हियर इट इज टेकिंग, सॉरी आगे आ गई हम।
this one. ठीक है, ये कमेंट आप देखो एडीआई डेटा का, तो here you are using ADI 15, मतलब now 15 is data which you are taking directly from input, और वो आप एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर रहे हो। तो एडीआई में अगर जैसे एक्यूमुलेटर में EAH है, तो EA का कोड क्या होता है 1110, A का कोड 1010, or data is given in the instruction, to you add 15 directly with the content of accumulator and you will get answer that is average। क्लियर? तो ये 2 बाइट क्यों है? एड आर जो है वो 1 बाइट है, क्योंकि दोनों रजिस्टर, जो दोनों डेटा है वो रजिस्टर में है, एक एक्यूमुलेटर में और एक जनरल पर्पस रजिस्टर। एड एम भी क्यों 1 बाइट है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक डेटा एक्यूमुलेटर में है और दूसरा हम किससे एक्सेस कर रहे हैं, दूसरा हम किससे एक्सेस कर रहे हैं, मेमोरी से। ठीक है, बट कुछ एड्रेस इज पॉइंटेड बाय एचएल, तो हम मेमोरी का एड्रेस डायरेक्ट नहीं एक्सेस कर रहे, हम तो रजिस्टर पेयर को ही एक्सेस कर रहे हैं एचएल को। तो दिस इज ऑल्सो 1 बाइट, बट हियर एडीआई डेटा जो है दैट इज इट इज 2 बाइट। ADI data is 2 byte. Why 2 byte? Because data itself is 1 byte and ADI is your what? Opcode. Then you also it will take one memory location. So I hope it is clear to everyone.